Good morning, students. Today we will do exercise and question answer from your book, English reader book, Open Skies, and chapter number 2, Happy Prince. The Happy Prince. Okay. First we will do the word meaning. Okay. Sorrow. Sorrow means grief. Sorrow means grief. Grief means शोक करना. सौरो. लेड. लेड अ सॉफ्ट मेटल, मुलायम पदार्थ होता है, एक मुलायम सी चीज़ होती है, सॉफ्ट मेटल होता है, जैसे बहुत ही मुलायम सा पदार्थ, उसको कहते हैं लेड. स्वेलो. स्वेलो अ माइग्रेटरी बर्ड, प्रवासी, जो यहाँ से वहाँ घूमती रहती हैं, जो चिड़िया प्रवासी, जो एक देश से दूसरे देश में वेदर के हिसाब से आती जाती रहती हैं, तो उसको कहते हैं स्वेलो. सरप्राइज्ड. सरप्राइज्ड मीन्स अमेज्ड, हैरान रह जाना. ठीक है. डिसाइडेड. डिसाइडेड मीन्स टुक डिसीजन, निर्णय ले लेना. हीप. कलेक्शन, ढेर. हीप, कलेक्शन, ढेर. प्रीसियस. प्रीसियस मीन्स वैल्यूड, महत्वपूर्ण. मेल्ट. MELT. मेल्ट मीन्स डिजॉल्व. डिजॉल्व हो जाना, उसी में घुल जाना, भंग हो जाना, घुल जाना. एडॉन्ड. एडॉन्ड मीन विभूषित करना, सजाना. ओके. ये एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में चैप्टर नंबर 2 द हैप्पी प्रिंस, फिर ये ऐसे वर्ड मीनिंग ऊपर लिखेंगे, और फिर ये वर्ड मीनिंग आपको हिंदी में और इंग्लिश में भी लिखनी है. ठीक है. तो ये आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है. ओके. नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज, वाई वॉज द प्रिंस कॉल्ड द हैप्पी प्रिंस. प्रिंस हमेशा वो हैप्पी प्रिंस क्यों कहलाया जाता था? बिकॉज देयर इज अ स्माइल ऑन हिज लिप्स, दैट्स वाई द प्रिंस नोन एज द हैप्पी प्रिंस. प्रिंस, देयर इज अ स्माइल ऑन हिज लिप्स, दैट्स वाई द प्रिंस नोन एज द हैप्पी प्रिंस. ओके. ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है. ठीक है. Now next one is, where was the swallow? What did the swallow see on looking up? The swallow was between the feet of the statue of Prince. When he looked up, he saw tears was coming out from the prince's eyes. Okay. The swallow was between the feet of the statue of Prince. When he looked up, he saw tears was coming out from the princess eyes. ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है. ओके. नाउ नेक्स्ट वन, how did the happy prince help the poor woman? The happy prince requested to the swallow to help the poor woman. He gave one of the jewels of his sword and asked to hand it over the poor old woman. The happy prince requested to the swallow to help the poor woman. He gave one of the jewels of his sword and asked to hand it over the poor old woman. Okay. Now next question is, why did the swallow not go to the warmer place? Because here is the answer. Prince wanted some more work to be done by the swallow, so he requested the swallow not to leave him. Okay. Leave, LEAVE, leave him. Now question number 5. What were the two precious things that God ordered the angels to bring? God ordered the angels to bring was the broken heart and the dead swallow. Was the broken heart and the dead swallow. Now
ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है. ओके, अब नाउ वी विल डू एक्सरसाइज. ये पेज नंबर 19 में है. ये आपका एक्सरसाइज पेज नंबर 19. ओके, नाइनटीन में है. ओके, नाउ स्टेट इज द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स करना है. फर्स्ट वन इज ए, द swallow and the happy prince were childhood friends. No, false. A drop of tear fell on the head of the swallow. True. The old man was happy to get the jewel from the sword of the happy prince. True. The matchboxes of the young girl got wet due to rain. बारिश की वजह से छोटी सी बच्ची की माचिस की तीलियां भीग गई थी. True. God loved the swallow and the happy prince. True. ये भी आपको एक्सरसाइज पेज नंबर 19 में है और ट्रू फॉल्स फिलअप करना है. ओके, नाउ थर्ड वन इज कंप्लीट द सेंटेंस विद द वर्ड्स फ्रॉम द लेसन. द वर्कमैन फाउंड अ हार्ट inside the statue. HEART, heart. The workman found a heart inside the statue. Now B is the dead swallow was lying in a heap of dust. In a heap of dust. The dead swallow was lying in a heap of dust. Okay. Now next one. The statue of the prince was to be replaced with the statue of Mayor. 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 The swallow still lives in a paradise. अब वो कहाँ रहती है swallow? स्वर्ग में. Paradise. PARADICE. Paradise. The happy prince never wanted to see anything thing unhappy. किसी को वो unhappy नहीं देखना चाहते थे. Happy prince. ये है टिक मार्क. Put a tick on the correct option to complete the sentence. The swallow with the members of his family was on migration. ठीक है, ये घूमने के लिए निकली हुई थी. When the happy prince gave all the jewels from his body looked ugly. The inside of the statue of the happy prince had stones. When the swallow died, he was found in the garden of the paradise. The angels brought the dash of the prince to God. Broken heart. ये आपको फिलअप करना है अपनी बुक में. ओके, नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? जो काम जारी है, जो काम अभी चल रहा है. टू सेंड व्हाट इज हैपनिंग एट द टाइम. इन कॉन्टिन्यूएशन to previous lesson, here we shall learn present continuous tense. अब हम present continuous tense के बारे में पढ़ेंगे. In the picture above we see that one frog has jumped into the water after seeing the snake. जैसे ही वो मेढक जो है कूद जाता है पानी में, जैसे ही वो स्नेक को देखता है. We use present continuous tense to say what is happening at the time of speaking. जब हम बात कर रहे हैं तभी जो चीज़ हो रही है उसी के बारे में हम बात करते हैं. उसी को present continuous tense कहते हैं. The dog is looking at me. Dog मुझे देख रहा है. So I am running away. इसीलिए मैं दौड़ रही हूँ. ओके, तो ये क्या है? present continuous tense है. ठीक है, जो काम अभी जारी हो. आइए देखते हैं इसमें क्या लगा होता है.
In the present continuous tense, sentences are formed by the use of is, am, are. Is, am, are plus ing form of the verb. ing form of the verb लगा रहेगा. जैसे I am going, तो लगा है ना, am going, he is going, she is going, it is going. तो verb and ing और is, am, are ये सब लगे होंगे. ओके. प्लूरल में क्या होता है? प्लूरल में वी आर गोइंग. ठीक है. वी जब सिंगुलर होगा तो इज, एम, और प्लूरल होगा तो आर होगा. यू आर गोइंग, दे आर गोइंग. ठीक है. ing लगा होता है. क्लियर? अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है. कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन द ब्रैकेट्स. ओके. द लॉयन डैश फॉर द रैबिट. इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करना है तो कैसे करेंगे? द लॉयन इज वेटिंग फॉर द रैबिट. वेटिंग फॉर द रैबिट. द माउस इज ईटिंग. द माउस इज ईटिंग द ब्रेड्स. इज ईटिंग, EATING. द मंकी इज सिटिंग. द मंकी इज sitting on the tree. The horses are running on the road. They are going to meet the minister today. He is carrying, CARRYING, a ball with him. It is going to rain tonight. Ram is looking for his brother. Okay? ये एक्सरसाइजेस आपको फिलअप करनी है. ओके. ये एक्सरसाइजेस आपको फिलअप करनी है. ये पेज नंबर 22 में है. ठीक है. ये एक्सरसाइज आपको करनी है. नाउ नेक्स्ट वन इज रीराइट द फॉलोइंग. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब जैसे ये सेंटेंस ऊपर दिया हुआ है ना, ही गोज टू द मार्केट नाउ, तो इसको हमको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? ही इज गोइंग टू द मार्केट नाउ. ही इज गोइंग टू द मार्केट नाउ. क्या लगा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में? हेल्पिंग वर्ब और ing. ठीक है. तो दे सिंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, तो क्या होगा? दे आर सिंगिंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. दे आर सिंगिंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. ठीक है. नेक्स्ट वन इज इट स्टैंड्स नियर द डोर. इट इज स्टैंडिंग नियर द डोर. इट इज स्टैंडिंग नियर द डोर. पीपल लुक एट द स्ट्रेंजर. पीपल आर लुकिंग एट द स्ट्रेंजर. पीपल आर लुकिंग एट द स्ट्रेंजर. वी राइट द एग्जामिनेशन. We are writing the examination. We are writing the examination. Ram plays a match. Ram is playing a match. Rashmi comes to see me. Rashmi is coming to see me. My mother cooks food for me. My mother is cooking food for me. Okay? Clear? ये एक्सरसाइजेस आपको ध्यान से अपनी बुक में फिलअप करना है. दे आर सिंगिंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. इट इज स्टैंडिंग नियर द डोर. पीपल आर लुकिंग एट द स्ट्रेंजर. वी आर राइटिंग द एग्जामिनेशन. राम इज प्लेइंग अ मैच. रश्मि इज कमिंग टू सी मी. माई मदर इज कुकिंग फूड फॉर मी. ये सारी एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में फिलअप करना है. ओके. क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय. हैव अ नाइस डे.